دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، پاکستان میں اس وقت فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے، جہاں پر اکیلا کپتان 13 پارٹیوں کے اتحاد، پولیٹیکل گینگسٹرز اور پھر اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری سب کے ساتھ تنہا لڑ رہا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے ایک حمام میں جو نہا رہے تھے وہ ننگے ہو چکے ہیں، پورے کا پورا نظام ننگا ہو چکا ہے ایک شخص کو گرانے کے لیے، لیکن وہ ایک شخص جو ہے وہ گرنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو کچھ بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس نے اس وقت تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا 3 گھنٹے تک اجلاس ہوتا رہا۔ اس کے اہم ترین تفصیلات میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں رکھ دی ہیں، لیکن اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ اندرونی لڑائیاں کھل کر اس وقت سامنے آ چکی ہیں۔ اور پہلی خبر یہ کہ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر وہ گتھا ہو چکے ہیں، اور آج جی ایچ کیو نے بھی طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور عدالتوں نے عمران حکومت کے خلاف اپنا آج جو فیصلہ سنایا ہے اس نے خطرے کی گھنٹیاں بجا کے رکھ دی ہیں، جس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ نون لیگ با مقابلہ اسٹیبلشمنٹ، اب یہ دونوں آپس میں گتھا ہیں، اور آئندہ چند گھنٹوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ آج کی رات پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر سے اہمیت اختیار کر چکی ہے، مارشل لا کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج رات اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دفعہ پھر سے کھلنے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ 9 اپریل کی تاریخ کو دہرانے کی ایک بار پھر سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے رات کو عدالتیں کھولنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، اس حوالے سے بھی انسائیڈ نیوز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جنرل باجوہ نے بھی اس سارے گندے کھیل میں اپنی چھلانگ لگا دی ہے۔ جہاں پر گندا کھیل ہو رہا ہوگا، یہ غلیظ شخص وہاں پر اپنا پاؤں نہ رکھے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تربیت بھی ایسی ہے، اور اس نے جو سازشیں رچائیں، جو منافق قسم کا جو انسان ہے، یہ اپنی منافقت سے باز نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عدلیہ کے خلاف ریاستی سطح پر کچھ گھٹیا مہم شروع کر دی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتے رہیں۔ ناظرین، اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے، جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہاں پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب حالات اس کے اچھے ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امپورٹنٹ حکومت کو مسلط کیا، رجیم چینج آپریشن کیا، اور اب امریکہ کی کٹ پتلیاں پاکستان کے اوپر مسلط ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر ملک صحیح سمت میں چل رہا ہوتا تو یہ جو پچھلے 4-5 دنوں سے غیر معمولی حالات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، 48 گھنٹے کور کمانڈر کانفرنس جاری رہی، اور پھر فوری طور پر آرمی چیف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں DGI بھی شریک تھے، اور اس کے اگلے روز یعنی کہ آج جمعے کو جو قومی سلامتی کی 3 گھنٹے تک میٹنگ جاری رہی ہے، کہ تواتر سے چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ 4 دنوں سے یہ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں سب اچھے کی رپورٹ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسحاق ڈار جس ہوا کے اندر اڑتے ہوئے لندن سے پاکستان آئے، اور بڑا شور شرابہ تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ ہمارے DGI بھی یہ کہتے تھے کہ جس دن نئی حکومت آئی ہے اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا ہے، بجائے DGI یہ جواب دیتا، بجائے اسٹیبلشمنٹ یہ بتاتی ہم نے، بجائے اسحاق ڈار آ کر یہ کہتا کہ عمران خان کے دور میں 6% سے ملک ترقی کر رہا تھا، ہمارے دور میں ملک جو ہے وہ 12% سے ترقی کر رہا ہے، یہ وجہ ہے رجیم چینج کی، عمران خان فیل ہو گیا تھا اور ہم نے جناب پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ بجائے ہمیں یہ بتاتے، آج ہمیں دہائیاں دے رہے ہیں کہ ملک کی معیشت دیوالیہ نہیں ہوگی، ہم بچا لیں گے، اور آج پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ $5.81 بلین رہ چکے ہیں، جبکہ عمران خان کے دور میں یہی ریزرو جو ہیں وہ 16 سے 18 ارب ڈالر تھے۔ تو جناب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس عمران خان کو معیشت کا بہانہ بنا کر نکالا گیا تھا، آج وہ اس کو کیوں نکالا گیا؟ صرف ایک امریکہ کا فیکٹر تھا کہ عمران خان ان کے لیے کرائے کی جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ اب جناب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف جو ہیں وہ گتھا ہوئے، اور آج GH نے جس طرح سے طبلِ جنگ بجایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور عدالتوں کا فیصلہ آج سامنے آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج تاریخ رقم کر دی ہے۔ جناب سب سے پہلے تو یہ کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے تک کا جو اجلاس ہوا، اس میں DGI نے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بریفنگ دی ہے، وزیر خزانہ نے اسحاق ڈار صاحب نے جناب معیشت کے اوپر بریفنگ دی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں،
हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और सियासत में जो मर्जी ये कर रहे हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखेंगे, हम नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, बादशाह डॉक्ट्रिन को खत्म करेंगे। लेकिन यहां पर नजर आ रहा है कि जैसे GHQ ने शहबाज शरीफ को कटहरे में लाकर खड़ा किया। बताएं भाई, आपके दौर में मैशत कैसे चल रही है? इमरान खान के दौर में ये इशारिया थे, आपके दौर में क्या इशारियां हैं? अब वहां पर इसहाक डार ने जो ब्रीफिंग दी है उससे वाज़ेह मतलब यह है कि मैशत के ऊपर आज जनाब बड़ी जरूरी लड़ाइयां चली हैं, और बताया गया कि TCI ऐसा ही कहते थे कि इमरान खान जो है उनका मसला तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था, उनका मसला मैशत नहीं था। आज वो किस मुंह से मैशत के लिए बैठकर ब्रीफिंग ले रहे थे कि आज मुल्क दिवालिया हो गया और वो ब्रीफिंग लेते फिर रहे हैं। जनाब ये न्यूट्रल्स की सारी भयानक चेहरा जो मैंने आपके सामने रखा है कि सियासत में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन जनाब आज बैठकर मैशत के हिसाब किताब ले रहे थे कि बताएं भाई क्या है। लेकिन ये अच्छी बात है कि शायद GHQ ने ये किया, लेकिन जनाब ये पाकिस्तान की सियासत में संगीन हद तक मुदाखलत जो है वो की जा रही है। लेकिन उस सब के बाद अंदर खाते जो है वो आज गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में के बाद जब ये फैसला होता है, जब ये खबर जो है बाहर ब्रेक की जाती है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जा रही है, 2 साल तक उसको लागू किया जाएगा। और फिर GHQ में अहम तरीन मीटिंग्स होती हैं जिसमें हफीज पाशा और हफीज शेख जो हैं वो जनाब GHQ में आर्मी चीफ से मिलते हैं। तो जनाब फौरी तौर पर हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ सामने आता है। वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि वो टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो गैर आइनी है, निगरान हुकूमत के अलावा और कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। यानी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में यहाँ पर लड़ाइयाँ पैदा हो गई हैं, और इमरान खान ने तो ऑलरेडी इस गैर आइनी कदम की मुखालफत कर दी है। और टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अमलन मुमकिन नहीं है। मैशत के लिए इक़दाम आइन के अंदर रहकर उठाए जा सकते हैं। ये जनाब वो कौन है जो गैर आइनी काम कर रहा है? वो कौन है जो जनाब टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत ला रहा है? जबकि हुकूमत तो कहती है कि ये तो गैर आइनी कदम है, और पीछे बैठकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है? एक ही नाम है, एक ही जनाब वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चलने नहीं दे रही है। और उन्होंने कहा है कि आइन में वाज़ेह है कि वक्त से पहले असेंबली की तहलील पर 90 रोज में इलेक्शन होंगे, और जनाब अगर वक्त के मुताबिक होते तो असेंबली की तहलील पर 60 रोज में इलेक्शन होते हैं। तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत जो है वो जनाब इसका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता कि 2-2 साल के लिए लंबे अरसे तक मुल्क में ये इमरजेंसी जो है उसको नाफिज किया जाए। अब जनाब जो असल खबर है ज़रा उसकी तरफ बढ़ जाते हैं कि जो अहम बात है कि कौमी सलामती की जैसी ये आज जो इजलास ख़त्म होता है तो फौरी तौर पर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक तारीखी फैसला सुनाया। शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा था कि आइंदा 10 रोज़ के अंदर कुछ बड़े फैसले होंगे, क्योंकि IMF ने इसहाक डार से डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है, और मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी कि कंट्रोल किया जाएगा मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। टेक्नोक्रेट्स की शक्ल में फौज जो है वो डायरेक्ट मुल्क पर काबिज हो जाएगी और फिर मुल्क को इस तरह से चलाया जाएगा। लेकिन जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म जारी कर दिया है और इलेक्शन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI और जमाते इस्लामी की दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं, और अब जनाब कल को ही इलेक्शन होंगे। ये अब तक का फैसला है जो मैं आप वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तकरीबन इस वक्त 7:35 हो चुके हैं। इसके बाद क्या फैसला अदालत देगी वो कुछ और है, लेकिन जनाब आपके सामने मैंने ये कहानी रख दी है कि हुकूमत अक्टूबर 2024 तक इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो मुल्क के हालात बताए जा रहे हैं, जो इस हुकूमत जो है वो मुल्क की हालात पर सियासत खेल रही है, अपनी गंदी सियासत जो है वो खेली जा रही है कि एक तरफ तो मुल्क तबाह हो रहा है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, हुकूमत इसको बहाना बनाकर असेंबली की मुद्दत में तकरीबन 1 साल तक तोसी करना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके हाथ नहीं आ रही, इस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही। अदालतों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि पहले रजीम चेंज ऑपरेशन में आपने हम लोगों को अपना हिस्सा बनाया और हिस्सा बनाकर हमें ब्लैकमेल किया जाता है। और एजेंसियों की रिपोर्ट भी सामने आई थी जब अदालत ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शंस के मामले के ऊपर कि इमरान खान यानी कि 101 यूसीस हैं, इस्लामाबाद में 101 हल्के हैं, जिसमें बताया गया उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 सीटें जीत रही है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज 25 सीटें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 और जनाब इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद उम्मीदवार जो है वो 6 सीटें जीत सकते हैं। अब अगर यहां पर ये चीजें हो रही हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट जा रही हैं, तो क्यों यहां पर हुकूमत जो है वो इलेक्शंस करवाएगी और ये अवामी हुकूमत नहीं रही और बार बार इलेक्शन से फरारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अदालत ने अपना तारीखी फैसला तो सुना दिया है। इमरान खान जो है वो एक हकीकत है, उसको कबूल नहीं किया जा रहा, क्योंकि बंद कमरों में ये फैसले हो चुके हैं कि जनाब PDM की मदद जारी रखी जाएगी, PDM के साथ उनको ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाया जा रहा है। और शहबाज शरीफ तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप इमरान खान को ले आए तो वो हमें सिर्फ जेलों में नहीं डालेगा बल्कि आपको भी जेलों में डालेगा।
अब इशारा किस जानिब था, वो कौन है जिनको इशारा किया जा रहा था, आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं। यानी कि जनाब अब जो सूरत हाल है, इस जुडिशल मार्शल पाकिस्तान में नाफिज किया गया है। जो नजम सेठी ने कहा था कि अब इस्टेब्लिशमेंट के पास सारे मामला नहीं जाएंगे, बल्कि सारे मामला जो हैं वो अदालतों में जाएंगे, और अदालतों को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, और अदालतों के जरिए इस्टेब्लिशमेंट फैसले सुनवाएगी। अब जो आज का फैसला है उससे वाज़ेह होता है कि जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फौरी बाद आया है, उसकी टाइमिंग आपने देखनी है, डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं। यानी कि दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हैं, दो ताकतें, और शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर, इन दोनों के दरमियान लड़ाइयां बढ़ती चली गई हैं, और अदालतों के जरिए फैसला आया है जो कि पहले कलअदम हो चुका था। अब जो पहले रोका गया था इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन, अब उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अब आ जाए जनाब जो अंदर खाते जो इस वक्त चल रहा है, और मार्शल का जो खतरा है, और आज रात किसी भी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल सकती है। 9 अप्रैल की तारीख जो है वो दोहराई जाने की कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। जनाब मन, अब हुकूमत ने जो आज का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया है, हुकूमत ने इसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया। इंट्रा कोर्ट अपील, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ। हंगामी इजलास, आपने गौर करना कि इनकी फुर्तियां देखें कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शरीफ खानदान का नौकर बन चुका है, और हंगामी इजलास के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा। और वजारत दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि इस्लामाबाद में आगे ही रेड अलर्ट जारी है। कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और अब दोबारा भी एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। 1000 पोलिंग स्टेशंस पर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, वहां पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर यहां पर इकदाम उठाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है। अदालतों को जनाब उनको ऊपर कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे तौहीन अदालत की गई है। क्या यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत का केस चलाएगी राना सनाउल्लाह के ऊपर कि हम अमल नहीं करते, जो करना है वो कर लें, हमारी ताकत है, हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई है। लेकिन जनाब 9 अप्रैल की रात को भी आधी रात को अदालतें खुली थी, मार्शल का खतरा था। जस्टिस अतर मिनरल साहब ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि उस वक्त मार्शल लग सकता था अगर जनाब हमने जो है वो अदालतें ना खोलते। यानी कि जनरल बाजवा जो है वो एक गैर आईनी कदम की जानिब बढ़ चुके थे, लेकिन अदालतों ने उसको नाकाम बना दिया था। तो आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोला जा रहा है, और ये हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ये अपील ले जाती है, इंटर कोर्ट अपील, तो रात को अदालतें खुल सकती हैं। और अगर अदालतें खुलती हैं तो हालात किस जानिब जाएंगे, तो यह आपको अंदाजा हो सकता है कि सब अच्छा नहीं है। तो सारे गंदे खेल में जनरल बाजवा साहब ने भी छलांग लगा दी है। और आपसे कुछ दिन पहले अंसार अब्बासी के जरिए बताया गया कि जनरल बाजवा ने साकिब निसार को जो है वो ट्रेस किया था मुल्क के DCI के जरिए, जनरल फैज के जरिए, और फिर साकिब निसार ने इमरान खान को NRO दिया था, जिस केस में साकिब निसार साहब ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। उसी केस में इमरान खान जो है वो नाअहल होते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने DCI के जरिए साकिब निसार से इमरान खान के हक में फैसला सुनवाया था। अपने अंदाजा लगाना है कि कैसे जनरल बाजवा के जरिए अदलिया के खिलाफ नई मुहिम शुरू कर दी गई है, क्योंकि जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां हैं, सजाए मौत हो सकती है। और आर्टिकल 6 के ऊपर जिस तरह से परवेज मुशर्रफ को निशाने इबरत बनाया गया, तो अब वो रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर अदालतों को भी घसीटना शुरू हो गए कि अदालतों ने भी मेरे साथ ये गलत काम किए। और जनरल बाजवा जिस हद तक गिर चुके हैं कि मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और इसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको अपना सोमोटो नोटिस देना चाहिए। और फिर जनाब ये नून लीग भी ब्लैकमेल कर रही है जनरल बाजवा को कि हम आपके खिलाफ नए सबूत ला देंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर आपको फंसा देंगे, आप हमारी मदद करें। तो अदलिया के खिलाफ जो ये हुकूमत के इस तरह की बयानाताना के काबिल अमल नहीं है हमारे लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला, और फिर जनरल बाजवा का साकिब निसार के ऊपर इल्जाम लगाना, तो ये अंदर खाते जनरल बाजवा और नून लीग जो आपस में ये सारी गेम कर रहे हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका पर नाज़मी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।